So first of all, very good morning to everyone. Keep silence now, please. So I just want to know first of all which topic you want to revise, or shall I continue with the things? Any topic you want to revise? This is not about unit. Any topic, any thing you want to revise. This is not about a unit I can discuss in the session. So I will just introduce the operating system. Anything that you, according to you, should be yes. So basically, we are having five algorithms. First come, first serve, shortest your first, its primitive version, shortest remaining time next, or it is shortest remaining time first. Right? Both the names can be used. Third of us, we are having round robin. Then we are having priority scheduling. Every algorithm is clear with everyone. कोई ऐसा algorithm जो किसी को नहीं आता हो, you want that we should revise, yes. Round robin, okay. Round robin, yes. Round robin. Anybody else with round robin? Okay. Round robin. So we will revise round robin first. After that, okay. Just let me consider everyone so that we will go further accordingly. Then in your second chapter, I think we are having. Let me open the index as well. My voice is audible to everyone here in this session. No, no. Okay, fine. So basically, guys, here we are revising some of the topics. If you have any doubt in any of the topic, you can also write in the chat box. The students who are attending the session online. Okay, myself, Anshul from Computer Engineering, and the syllabus for your operating system subject is Chapter 1, Chapter 2, 4 units, Chapter 3, before semaphore. Until you have fixed the consumer problem using sleep and wake up calls. Okay, any doubt in syllabus? Mid-one syllabus? You are in computer engineering, na? Yes. Chapter number 1, chapter number 2, whole things. In chapter number 3, in 3 or 4, we are, I think, reading parallelly because many of the topics in chapter number 3 and 4 are same. Few of the topics are different, which is written in chapter number 3 in your syllabus as well. And in chapter number 4, we are having the topics which are overlapping in both of the units. That's why we are parallelly learning chapter number 3 and 4. Basically, it is the one chapter, 3 and 4, right? So I will also upload the PPT in the same manner for 3 and 4. The one PPT will be there because few of the topics are overlapping in chapter number 3 and 4. So there is no use of reading that same topic twice, right? So in chapter number 3 or 4, or you will consider as chapter number 3, that is until semaphore means semaphores के बाद वाला जो भी कंटेंट है वो नहीं आएगा. मतलब what is semaphore? Then you are having producer consumer problem by using semaphore. Then you are having IPC
classical problem, that is your dining philosopher, reading writers, then your sleeper barber, and all these things will not come in your mid one. In your mid one, in chapter number 3, yes, Priyanka. Yes, Priyanka. Want to say something? Guys, in the online session, if you have any doubt or anything to say, you can speak because I'm Ma'am, not always there in the screen. Yes, Milan? ma'am, your voice is breaking continuously. Somewhere it may be low in pitch because I am also here with the students who are attending the session offline. So you have to adjust accordingly. Fine. Ma'am, are you in the class? Yeah, they are in the class. It is not visible to you, okay? So this is the content of chapter number 2 I am showing you here. Yes, yes, I will write the course here as well. What would be the syllabus in your mid one? Also, I will post the message in your WhatsApp group as well. Fine. So don't worry about that. You will get to know by end of today. So in your chapter number 2, this is the content we are having. You can see here. Now you will tell me in the algorithms you have asked for one query, that is round robin, that we will discuss. Out of this, do you have any query, any doubt or any topic which is not clear with you? First, we are having a concept of process. Then we are having a process relations or process states, that is a process state transition diagram in which we are having a 5 states. Which states we are having of a process? Ready, running, yes. Wait, waiting or block, yes. These are the 3 states we are having: ready, running, and waiting. Other two, terminating state, that is your exit state. Else, one more is there. Yes, anyone? आप लोगों को प्रोसेसेस की स्टेट्स? हाँ जी. All algorithms you want to? मैं ट्राई करूंगी जितना भी सेशन में कंप्लीट हो पाए, राइट? ओके, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद डिस्कशन. Basically, these are your 5 states we are having in your process state transition diagram. And this is a very important topic as per your GT exam point of view. Every question paper you will find it, this question will be there in your second chapter. When we talk about your GT examinations. Also, when this question will be asked, you have to draw this diagram with the explanation of each state. When your process will change its transition, means when the process will goes from new to ready, ready to running, running to block, block to ready, again running to ready as well. Because once when your interrupt will come in somewhere in your system, your process will change its state from running to ready state. Because when your high priority process comes into the system, your processes which is running on the system will go to the ready state, wait over there. Once your high priority process will get the execution complete, it will go again to the running state, right? Then you are also having a state transition from running to exit, fine. So we are having this is also one another state we are having, that is a suspend state. This is a optional means when, because in your GT exam point of view, we consider there is only question that is asked, that is a 5 state transition diagram. We are also having one another state in our system, that is a suspend state.
Do you know about suspend state? When you are अब देखो ब्लॉक स्टेट में जब हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, किसी भी आउटपुट या इनपुट इवेंट को परफॉर्म करने के लिए वेट कर रहे होते हैं. मीन्स अगर कोई इनपुट डिवाइस चाहिए, कोई आउटपुट डिवाइस चाहिए, कोई फाइल चाहिए, तो वहां पर ब्लॉक स्टेट में वेट करते हैं, राइट. तो दिस इज द वर्ड ब्लॉक स्टेट. बट एक प्रोसेस को, कोई एक प्रोसेस ऐसा है जिसके पास अभी जिस भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वो वेट कर रहा है, वो उसे मिल ही नहीं रहा है. तो कोई एक टाइम स्पेन होना चाहिए जितनी देर तक वो वेट कर पाए. अदर देन दैट वो प्रोसेस हमेशा, मतलब दिस स्टेट्स हैज बीन ऑलरेडी इन योर रैम. जितनी भी स्टेट्स आपका प्रोसेस चेंज कर रहा है वो मेन मेमोरी में होती है, राइट. तो आपका वो प्रोसेस अगर हमेशा के लिए मेन मेमोरी में रहेगा, दैट इज अ वेस्टेज ऑफ योर मेमोरी. किसी दूसरे को चांस ही नहीं मिल पा रहा है एग्जीक्यूशन के लिए. मतलब रैम में आने का क्या मतलब है? द प्रोसेसेस आर इन रनिंग स्टेट. दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज एज अ प्रोसेस ना. व्हेन योर प्रोग्राम गोज फॉर एग्जीक्यूशन इट इज नोन एज प्रोसेस. तो प्रोसेस की स्टेट्स हम डिस्कस कर रहे हैं. इट मींस आपका जो प्रोसेस है वो रैम में है, राइट. तो जब भी आपका प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में है और किसी और इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है, तो जब तक उसको वो इनपुट आउटपुट नहीं मिलेगा तब तक वो ब्लॉक स्टेट में वेट करेगा. तो हम ये नहीं कर सकते कि वो परमानेंट ब्लॉक स्टेट में वेट करता रहे, राइट. दैट्स व्हाई वी आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अनदर स्टेट, दैट इज योर सस्पेंड, that lies in your secondary memory. There is only one state in the process diagram that lies in your secondary storage. Once the time span will be over for that process, we will suspend that process. हम क्या करते हैं, जब एक बार अगर मान लो मैंने बोला कि कोई प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में भी सिर्फ 1 घंटे के लिए वेट कर सकता है, उसके बाद मैं उसे सस्पेंड कर दूंगी, राइट. क्योंकि अगर आपकी क्यू जो है वो एक लिमिटेड मेमोरी है ना आपके पास ब्लॉक स्टेट में भी, तो उसमें आप कितने प्रोसेसेस को और कब तक वेट करवाते रहोगे. रियल टाइम एग्जांपल देती हूँ. आप लोग जब सिस्टम यूज करते हो, बहुत बार आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है या फिर कोई भी प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता. आप क्या करते हो, टास्क मैनेजर ओपन करते हो, फिर रीस्टार्ट करते हो. रीस्टार्ट या टास्क मैनेजर से परफॉर्म करने का क्या मतलब है? यू आर स्टार्टिंग योर सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच, जहाँ पे आप सारे प्रोसेसेस को एंड कर देते हो और फिर से प्रोसेसेस को एलोकेट करते हो मेमोरी. यू कैन सी इन योर सिस्टम यू आर हैविंग अ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर मेमोरी. फ्रेगमेंटेशन, आप डीफ्रेगमेंटेशन ऑफ योर मेमोरी भी परफॉर्म करते हो आपके सिस्टम में. इफ यू हैव सीन दिस, आई विल शो यू हियर. So when you open this, it is not visible. दिख क्यों नहीं रहा? Fine. I think there is a problem in this uh, projector. I think we are having forwarded. We are having a. If you can see in your laptop, there is a pop-up message. There is a window will open when you ask for optimized disk, or you will ask for defragmentation of your disk. तो आपके पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें आप सारी अपनी ड्राइव्स को डीफ्रेगमेंट करते हो. इन मेमोरी मैनेजमेंट यू विल गेट टू नो व्हाट इज डीफ्रेगमेंटेशन. मतलब जो स्लॉट्स रह जाते हैं खाली मेमोरी में, जब प्रोसेसेस एग्जिट हो जाते हैं तो उन स्लॉट्स का कोई यूजेज नहीं होता है, तो हम उस स्लॉट्स को फ्रेगमेंटेशन को हटाकर उसको एक नया स्लॉट बनाकर यूज करते हैं, राइट. So that's why when you restart your system, we जो ब्लॉक आपके प्रोसेसेस होते हैं उनको एंड कर कर वापस से इनिशिएट करते हैं और उसे रन करते हैं, right. So in this way you can say that we are having one another state of a process, that is your suspend state. Okay, going for the algorithms. Firstly, we will start from round robin, right, because many of you are having a doubt in that. Then we will go for another one. I know, but many of having a doubt in that, so they will be clear before the session will end.
You clear with these criteria we are having? What is throughput, what is turnaround time, what is waiting time, and what is response time. Okay, because we are going to use these terms, and you are also clear with these two terms, primitive and non-primitive. Okay, basically we are having these 5 algorithms with us. Firstly, we'll go with the first come first serve से start करें. Okay. First come first serve, what is the main idea? First of all, I will go with the direct example. In the question paper, it is given to you. These are the number of processes we are having. That is P0, P1, P2, and P3. Right? Arrival time means when your process comes into the system. System here I said that is your main memory. Right? So one, what is the arrival time when your process comes into the system? That is the arrival time. जैसे कि आपका क्लास है 10 से 11 बजे, तो आप क्लास में कितने बजे आ रहे हो? 10 बजे, 10:02 पे, 10:03 पे, 10:05 पे. This will be the arrival time for you, right? Then we are having a burst time, जैसे कि हम completion time भी बोलते हैं. मतलब आपने पूरा टाइम क्लास कितनी देर अटेंड की और कब आप इस क्लास से बाहर गए, दैट इज योर बर्स्ट टाइम. मतलब प्रोसेस के केस में बोले तो प्रोसेस ने कितनी देर के लिए सीपीयू को यूटिलाइज किया, एंड इन योर केस आपने कितनी देर के लिए क्लास को यूटिलाइज किया. फिजिकली ओनली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट मेंटली. So when once you came into the class at 10:02 and you exit from the class at 11 o'clock, how much time you have devoted over here? 58 minutes. At 10:02 you came and at 11 you passed from here, then you devoted 58 minutes here. The same time, once a process comes into the system at 0, that is a 0 time, right? Time can be any units we consider, either in milliseconds, either in seconds, if it is given in the question paper accordingly. Then what is the burst time? मतलब उसको CPU की requirement कितनी देर के लिए? 10 seconds के लिए, right? Same, the P1 requires CPU for 6 seconds, P2 requires CPU for 2 seconds, and P3 requires CPU for 4 seconds. So this is the burst time given कि किसी भी प्रोसेस को CPU की requirement कितनी देर के लिए है. हमने क्या करना होता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से किस लिए हमने यूज की है कि हम किसी प्रोसेस को सीपीयू शेड्यूल कर रहे हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड सीपीयू शेड्यूलिंग, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग. बोथ आर सेम, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोसेसेस को सीपीयू पे शेड्यूल करते हैं, इसीलिए हम इसे सीपीयू शेड्यूलिंग कंसीडर करते हैं और प्रोसेस शेड्यूलिंग भी बोलते हैं. तो अब मेरे को यहाँ पर ये देखना है कि मुझे अपने प्रोसेस को शेड्यूल करना है किस पे? सीपीयू पे. उसकी रिक्वायरमेंट मुझे गिवन है, उसका अराइवल टाइम मुझे गिवन है. फाइन. अब आपको क्वेश्चन पेपर में 2 चीजें पूछी होंगी, एक तो होगा टर्न अराउंड टाइम और एक होगा वेटिंग टाइम, राइट? टर्न अराउंड टाइम क्या होता है मेरे पास कि मेरे प्रोसेस ने कितनी देर सिस्टम में स्पेंड किया, चाहे उसने किसी भी चीज में दिमाग लगाया, काम किया, उसने कितनी देर वहां पे, जैसे कि आप 10:02 पे एंटर हुए और आप 11 o'clock एग्जिट किए, भले ही आपने बातें की हो, पढ़ाई कुछ ना की हो, लेकिन आपने 58 मिनट्स यहाँ डिवोट किए, राइट? दिस इज द टर्न अराउंड टाइम. उसमें से सीपीयू का टाइम कितना है वो भी मैंने नहीं पूछा है, फिर आपने कितनी देर पढ़ाई की वो टाइम मैंने नहीं पूछा है, राइट? दैट इज योर टर्न अराउंड टाइम, दैट इज योर टोटल टाइम दैट योर प्रोसेस हैज बीन डिवोटेड इनटू योर सिस्टम. तो अगर वो 0 सेकंड पे आ रहा है और 10 सेकंड पे एग्जिट किया है तो डेफिनेटली इट इज 10 minus 0. It is your exit time minus arrival time. Simple, right? Then we are having a waiting time. In CPU scheduling algorithms, we consider, means we only neglect, what we neglect here, हम ये assume करके चलते हैं कि आपका जो प्रोसेस है वो 2 ही काम कर रहा है, या तो CPU के लिए वेट करता है या CPU पे रन एग्जीक्यूट होता है. मतलब वो इनपुट आउटपुट के लिए वेट करता है, नहीं करता, उसे हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करके चलते हैं. तो आपका जो प्रोसेस है वो 2 ही काम कर रहा है, या तो सीपीयू के लिए वेट कर रहा है, दैट इज योर वेटिंग टाइम, या सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज योर बर्स्ट टाइम. व्हाट इज द वेटिंग टाइम हियर? मतलब आपके पूरी लाइफ टाइम के, मतलब आपके इस पूरे सेशन के ड्यूरिंग आप 2 ही काम कर रहे हो, या तो आप पढ़ रहे हो या तो आप बातें कर रहे हो, राइट? तो मैंने यहाँ पर क्या किया, वेटिंग टाइम, आइदर यू आर डूइंग योर ओन थिंग्स, दैट इज योर वेटिंग टाइम, राइट? बर्स्ट टाइम, दैट इज यू आर डिवोटिंग योर टाइम टू द स्टडीज, दैट इज योर बर्स्ट टाइम, जो आपने यूटिलाइज किया, राइट? तो ऐसे ही प्रोसेस क्या कर रहा है, या तो सीपीयू के लिए वेट कर रहा है, दैट इज द वेटिंग टाइम, या सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो रहा है, वो क्या उसका बर्स्ट टाइम है, राइट? तो वेटिंग टाइम हम बेसिकली कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज योर टर्न अराउंड टाइम. मतलब जो उसका टोटल टाइम है उसमें से उसने
बर्स्ट टाइम मतलब जो उसने यूटिलाइज किया वो कितना था, तो उसका वेटिंग टाइम हम फाइंड आउट कर सकते हैं लॉजिकली। क्रैम करने को आप ये फॉर्मूला क्रैम भी कर सकते हो, बट दिस इज द लॉजिक। दो ही काम करता है प्रोसेस, या तो वेट करता है या एग्जीक्यूट करता है, राइट। तो वेटिंग टाइम क्या है, जब जितनी देर के लिए वो सीपीयू के लिए वेट करता है, और बर्स्ट टाइम जितनी देर वो सीपीयू पे एग्जीक्यूट करता है, तो वो ही उसका टोटल टाइम होगा ना, वो ही काम कर रहा है तो वही टोटल टाइम के इक्वल होगा। तो वी विल फाइंड द वेटिंग टाइम, दैट इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज वी आर गोइंग टू यूज। तो यही आपको फाइंड आउट करना होता है एट द एंड ऑफ दिस numerical. Fine. So how we will go for the first come first serve? Arrival time is given, burst time is given. Fine. You have to find the turnaround time and waiting time for each process first of all. So firstly we will draw the Gantt chart. You know Gantt chart? This is the physical representation of the processes using CPU. तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का फंडा क्या है, व्हाट इज द आइडिया ऑफ दिस एल्गोरिथम। जो पहले आएगा उसको पहले सर्व करेंगे। जैसे कि बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, आप एटीएम मशीन पे जाते हो उसमें तो फिर भी लोग आगे पीछे हो सकते हैं। आप रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने जाते हो तो जो लाइन में खड़ा है पहले उसको टिकट मिलेगी। आप मूवी थिएटर्स में जाते हो, जो पहले खड़ा है उसको पहले टिकट मिलेगा। दिस इज हाउ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व you have seen in your regular daily life routines as well. The same thing happens here. जो प्रोसेस सिस्टम में पहले अराइव हुआ है, what I am saying here arrived, so that we will consider the arrival time, right? The process which comes into the system first will be served first. उसे कितनी देर सिस्टम यूज करना है, उसे क्या करना है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैनेजर सिर्फ इतना देखना है कि सिस्टम में कौन सा प्रोसेस पहले आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, मेरे पास अराइवल टाइम गिवन है हर एक प्रोसेस के। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर यू कैन कंसीडर विच प्रोसेस कम्स फर्स्ट in between these four processes. P0 comes first. तो हम क्या करते हैं, गैंट चार्ट को हमेशा 0 सेकंड से स्टार्ट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस 1 सेकंड पे भी अराइव किया हो, रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। अगर आपका ये प्रोसेस 0 सेकंड पर भी 1 सेकंड पर भी अराइव किया हो, वी विल कंसीडर दिस इज द आइडियल टाइम फॉर द सीपीयू। ऑलवेज वी विल स्टार्ट द गैंट चार्ट फ्रॉम 0। अगर आपका कोई प्रोसेस एंटर हुआ है या नहीं हुआ, अब जब भी वो एंटर हुआ तब से हम उसकी प्रोसेसिंग शुरू कर देंगे। तो ये टाइम क्या कंसीडर करेंगे, दैट इज योर आइडल टाइम, राइट। तो ऐसा ही केस नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं। तो चलिए अब हम इसी केस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। फाइन। सो एट 0 P0 के कितने सेकंड के लिए सीपीयू चाहिए उसको, 10 सेकंड के लिए। तो मैंने पूरे 10 सेकंड के लिए उसे एग्जीक्यूट कर दिया, तो P0 कंप्लीट। आफ्टर इन बिटवीन दीज 10 सेकेंड्स आपके P1, P2 और P3 तीनों प्रोसेस सिस्टम में आ चुके हैं। इन बिटवीन 10 सेकेंड्स एवरी प्रोसेस कम्स इनटू द सिस्टम। तो अब इन तीनों में से अराइवल टाइम किसका कम है, P1 का, दैट इज 1 सेकेंड। तो पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, P1। कितने सेकेंड्स के लिए, 6 सेकेंड्स। तो 10 + 6 16। After that, which will execute P2. How much seconds? 2 seconds. 16 + 2 18. After that, P3 is only remaining for 4 seconds 22. So this is the Gantt chart. अगर आपने चार्ट सही से ड्रॉ कर दिया है तो आपका पूरा क्वेश्चन सही होगा। अगर ये चार्ट गलत है तो आगे जितने भी स्टेप्स परफॉर्म करोगे सब गलत होंगे, राइट। ऑल्सो यू विल क्रॉस वेरीफाई कि आपका चार्ट सही है या नहीं। The burst time will be always equals to this count. कितना burst time है, 10 + 6 16 + 2 18 + 4 22। तो अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि which process, the process which will be executed at the last, at what second that process will be executed. आपका जो लास्ट प्रोसेस है वो कितने सेकंड पर सिस्टम पे एग्जिट करता है, that will be the execution of all the, जितना भी बर्स्ट टाइम है सबको कैलकुलेट करोगे तो कोई भी प्रोसेस लास्ट में गया हो उसका समेशन वही होगा। अब यहाँ पर कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट किया हो नहीं पता, लेकिन लास्ट जो प्रोसेस है उसका एग्जिट टाइम 22 ही होगा, राइट। तो ये डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। सो व्हाट विल बी द एग्जिट टाइम फॉर ईच प्रोसेस, लेट अस राइट हियर। Exit time for P0 10, for P1
16. P2 it is 18. And P3 it is 22. This is Ma'am, the your exit time screen for is each not process. visible, ma'am. Wait. Now it is visible. Yes, ma'am. Okay. So this is the exit time for each process. Now let us find out the turnaround time. Turnaround time क्या था कि कोई प्रोसेस कब आया और कब गया उसके बीच का डिफरेंस. तो अराइवल टाइम हमें ऑलरेडी गिवन है, एग्जिट टाइम हम फाइंड आउट कर चुके हैं. तो दिस इज 10 minus 0 10, 16 minus 1 15, 18 minus 3 15, 22 minus 5 17. This is the turnaround time for each process. आपको बेसिकली क्वेश्चन पेपर में आता है एवरेज फाइंड करना. रिमेंबर दिस. What is the average value? That is addition of these four numbers divide by 4. जितने भी numbers हैं उसका count उससे divide कर दो, that will be the average value. Fine, very easy. What is the waiting time? Waiting time क्या था? Total time minus burst time. तो total time हम find out कर चुके हैं, burst time हमें given है. Let us write the waiting time here. Total time is 10 minus 10 0. तो अगर आप यहाँ पर भी देखो चार्ट में P0 को कितनी देर वेट करना पड़ा है? 0 सेकेंड. Logically true. Okay. Then P2 it is 15 minus 6 9. For P3 it is 15 minus 2 13. For P3 13 again, that is 17 minus 5. Then average would be addition of these numbers divided by 4. Okay. 17 minus 4 is there. Fine. So this is how you will find the turnaround time and waiting time. You will find the average by addition of these numbers divided by 4. So I will show you the exact answers also here. This is the average turnaround time and average waiting time. So for another question you will do. Advantage disadvantage बाद में बताती हूँ. For the first question, do it. For the first question, pen paper निकालो. Tell me the average turnaround time and average waiting time for first question here. For the first table, there are three processes. Arrival time is same for all. What you will do at that place? प्रोसेस के लिए अराइवल टाइम सेम है. हमारा जो मेन डिसीजन फैक्टर था वो अराइवल टाइम का क्या करेंगे? The first come first serve. We consider the arrival time of the process, right? Now the arrival time is same for each process. Which process will be executed first? How you decided that? Why not P2? The arrival time तो same है ना? Yes, ma'am. Anyone? How you decided P1 will be executed first, not P2, not P3? मैं उसका नाम N रख देती हूँ तो it is the only naming convention I had given, because P1 it means it is a first process. If I'll write N, M or O, then
दैट वुड बी रैंडम, हम नहीं जान सकते। नहीं यही है ना, मैंने एक सीक्वेंस में लिख दिया इसलिए आपको लग रहा है कि ये क्यू है। आपके सिस्टम पे एक ही टाइम पे सारे, देखो रियल टाइम सिनेरियो यहाँ पर सोचो, एक ही टाइम पर तीनों प्रोसेसेस आ रहे हैं। मैंने अगर इस तरीके से लिख दिया तो यू आर कंसीडरिंग दिस इज अ क्यू। मुझे नहीं पता कि रियल टाइम में या रैंडमली कौन सा प्रोसेस क्यू में पहले आ रहा है, क्योंकि टाइम सबका सेम है। तब हम क्या करते हैं, सारे एल्गोरिथम्स की बात कर रही हूँ, इन ईच ऑफ द सिचुएशन वी विल, अब कोई भी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करो न्यूमेरिकल में, कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। पहली बात, अगर आप P3 को एग्जीक्यूट करते हो दैट इज आल्सो करेक्ट, P2 को एग्जीक्यूट करते हो दैट इज आल्सो करेक्ट, बट फॉर द सेम आंसर्स वी विल कंसीडर द सीक्वेंस गिवन ऑफ द प्रोसेसेस। अगर सीक्वेंस आपको P3, P2 और P1 गिवन होगी तो पहले P3 को हम रन कर देते हैं। What I'm saying here is, ये जो सीक्वेंस गिवन है, हम इस सीक्वेंस से प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर there is a one rule we are using here। अब टाइम क्या है, तीनों का सेम है। अगर मैं P2 को भी एग्जीक्यूट करूंगी तो गलत नहीं होगा क्योंकि टाइम तो सेम है। P3 को भी करूंगी तो कोई ऐसा पूछे भाई P3 को कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है, अराइवल टाइम सेम है। तो मुझे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में मुझे अराइवल टाइम ही कंसीडर करना है। यहाँ पर बर्स्ट टाइम का भी कुछ भी नहीं है पिक्चर में, मैं बर्स्ट टाइम देखूंगी ही नहीं किसको कितना चाहिए। यही तो मेन डिसएडवांटेज है इसका। मेन डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कि हम बर्स्ट टाइम कंसीडर ही नहीं करते हैं, हम सिर्फ अराइवल टाइम कंसीडर करते हैं। राइट, इफ यू रिमेंबर द प्रॉब्लम हियर इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दैट इज नोन एज, it is written here, yes, convoy effect। that is the main disadvantage of first come first serve problem। that is the convoy effect कि अगर कोई प्रोसेस पहले आता है और उसका एग्जीक्यूशन टाइम 1000 सेकेंड्स है और कोई प्रोसेस बाद में आता है और उसका एग्जीक्यूशन टाइम 1 सेकेंड है, तो उसको 999 सेकेंड्स वेट करना पड़ा क्योंकि उसको सिर्फ एक ही सेकेंड चाहिए था सीपीयू तो भी। that is what is called convoy effect here। it is the main limitation of first come first serve। तो बेसिकली व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यही करना है, आपका अराइवल टाइम सेम हो तब डिसीजन कैसे लेंगे। आप कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हो, नो डाउट इन दैट, कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर कि ये नहीं वो नहीं, कोई भी कर सकते हैं। लेकिन एज पर द सेम रेलिवेंट आंसर्स वी कंसीडर द सीक्वेंस गिवन। अगर मुझे सीक्वेंस P3, P2 या P1 गिवन होती तो मैं पहले P3 एग्जीक्यूट करती, फिर P2 और फिर P1। we will just consider the sequence given in the table। it is not a queue here first of all। इन टेबल्स को आप रियल टाइम सिनेरियोस के साथ नहीं कनेक्ट करो सिस्टम में। ऐसी चीजें, पहली बात तो प्रैक्टिकली जो हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में किसी भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम बता ही नहीं सकती हूँ इन सिस्टम। व्हेन वी टॉक अबाउट किसी प्रोसेस को बीच में क्या चाहिए हो सकता है मुझे नहीं पता। Initially, I cannot say that कि ये process इतना ही time लेगा, right? So this is the only sequence of processes given। Arrival time is given, so you will just consider the sequence given in this table, right? So we will firstly execute P1, then P2, then P3। Now, what is the turnaround time and waiting time? It is the average waiting time for everyone. 27 is turnaround time, waiting time। भाई तुम क्या कर रहे हो, सुन रहे हो बस क्या? हाँ पूरा लिखो ना, फिर वेट क्या कर रहे हो? शेयरिंग रिसोर्सेज यूज मत करो प्लीज, डोंट यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अपना करिए। जब तक लिखोगे नहीं खुद से पेपर में नहीं कर पाओगे। नीचे वाला भी कर लिया? हाँ, वो बेसिकली मैंने एग्जांपल इसलिए दिया है ताकि मैं कॉन्वो इफेक्ट समझा पाऊं। दैट आई ऑलरेडी 18 17 वेटिंग टाइम 17 करेक्ट एंड टर्न अराउंड टाइम 27 करेक्ट, राइट। अब ये जो आपने एग्जीक्यूट कर दिया है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग दैट इज करेक्ट, बट अगर P3 P2 P1 होगा तो चेंज हो सकता है, समझ रहे हो? हाँ हाँ, जो सीक्वेंस टेबल में गिवन होगा कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में भी हम वही
रूल फॉलो करेंगे, हम एक ही रूल फॉलो करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स में, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब ऐसे तो आधे लोग P2 को पहले एग्जीक्यूट कर देंगे और आधे लोग P3 को तब। यस यस, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है कि जब कोई ऑलरेडी ऑनगोइंग हो और कोई और प्रोसेस आए तो हम उसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। तो इसमें तो क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे चला रहे हैं, तो मेन आइडिया क्या है, जो पहले आएगा उसको दे रहे हैं, तो इसके बाद जो आएंगे वो बाद में ही आएंगे ना, तो नॉन प्रिमिटिव ही रहा। लॉजिक क्या था कि जो पहले आया उसको पहले एग्जीक्यूट किया। प्रिमिटिव का क्या मतलब है, जो बाद में आएगा उसमें चेक क्या करना है, अराइवल टाइम तो ऑलरेडी उसका लेट है, उसमें हमें चेक कुछ करना ही नहीं है। तो that's why it is also always non primitive, क्योंकि जो मेन आइडिया है वो अराइवल टाइम था, तो अराइवल टाइम जो बाद में आएगा उसका हमेशा बाद में ही रहेगा, सेम रहेगा ही नहीं, ठीक है। और इस केस में सबका अराइवल टाइम सेम ही है, तो मैंने सीक्वेंस बता दिया आपको, यू विल फॉलो द सीक्वेंस, इट इज नॉट द क्यू, राइट। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्लियर है सबको? ओके, yes, Harshil, your answer is correct. Everybody is done. Who is attending online? First come first serve is clear? Yes, ma'am. Okay. Moving further, कॉन्वो इफेक्ट समझ में आ गया ना? आपके GTU के पेपर्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ, व्हाट इज कॉन्वो इफेक्ट? So it is the disadvantage of first come first serve. What is the disadvantage? I already said to you that in this, if you see this example, आपका जो P2 प्रोसेस है, आपका जो P1 प्रोसेस है वो 0 टाइम पे आता है, उसको 1 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूशन चाहिए। P2 1 सेकेंड पे आता है, उसे 100 सेकेंड के लिए चाहिए, और P3 को 2 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड के लिए चाहिए। तो मतलब P3 को कितने सेकेंड के लिए वेट करना पड़ेगा? 99 प्लस वो 2 सेकेंड पे आया, ठीक है, 2 सेकेंड पे आया, तो 2 सेकेंड के बाद वो 99 सेकेंड उसे वेट करना पड़ा, ठीक है। तो उसे 1 सेकेंड के लिए सिस्टम चाहिए, उसे 99 सेकेंड वेट करना पड़ रहा है। तो मतलब जो आपका एवरेज वेटिंग टाइम है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के केस में बहुत ज्यादा हो जाता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्वो इफेक्ट। द प्रोसेसेस व्हिच इज हैविंग minimum burst time will not get a chance to execute. They have to wait. There is no other option. It is called convoy effect here. बस इसी बात को convoy effect बोला गया है, उसमें कुछ confusion नहीं है। It is the only disadvantage of first come first serve. It is also written in your presentation, you can see. Next, we are having shortest job first. As the name says, shortest job. What is the decision mode? अब इसमें हम डिसीजन कैसे लेंगे कि कौन से प्रोसेस को सीपीयू पे शेड्यूल करना है। Let us take the example. Again, I am having the same example here. First come first serve के केस में मैंने अराइवल टाइम कंसीडर किया। इस केस में मेरा डिसएडवांटेज क्या था कि अराइवल टाइम बंदे का थोड़ा लेट क्यों है, उसको बहुत टाइम के लिए वेट करना पड़ गया, ठीक है। मैं 1 सेकेंड लेट हो गई और मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। दैट इज नॉट अ फेयर चांस, राइट। आप 1 सेकेंड पेपर में लेट हो जाओ और आपको एंटर ना करने दे, कैसा लगेगा कि 1 सेकेंड के लिए मेरा पेपर छोड़वा दिया। The same thing, the same disadvantage we are having in first come first serve. So we come up with the next idea, that is shortest job first. अब हम यहाँ पे अराइवल टाइम को कंसीडर नहीं करते, हम यहाँ पर बर्स्ट टाइम को कंसीडर करते हैं, जो कि लिमिटेशन थी हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की, ठीक है। मतलब जिसका भी बर्स्ट टाइम कम होगा उसको पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे। जो लिमिटेशन थी उसे एक्चुअली हम यहाँ पर आइडिया लेकर आए कि जिस भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम मतलब सीपीयू को यूज करने का टाइम सबसे कम होगा उसे सबसे पहले मैं एग्जीक्यूट कर दूंगी, राइट। So how we will go for this thing? We are having a arrival time, we are having a burst time. Okay, first of all you will let me know, then I will discuss. Let us draw the Gantt chart. Which process will be executed first? P0. P0 का burst time क्या है? Shortest किसका है? P2 का। तो P0 क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हैं? देखो यहाँ पर आपको क्या है, सारे प्रोसेसेस यहाँ लिख के दे दिए कि 0 पे आ रहा है, 1 पे, 3 पे, 5 पे।
जीरो पे आने का क्या मतलब, जीरो इसका अराइवल टाइम है, इसका क्या मतलब है कि ये तीनों प्रोसेस तब तक है ही नहीं, राइट। तो जब तक मेरे पास चॉइस नहीं है आई विल गो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन, राइट। सो मेरे पास यहाँ पर अभी तक कोई चॉइस नहीं थी, कोई प्रोसेसेस रेडी क्यू में नहीं थे। अगर मेरे पास रेडी क्यू में सेम टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं तब मैं देख सकती हूँ किसका टाइम कम है, लेकिन जब मेरे पास प्रोसेस ही एक है तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगी कि मैं वेट करूंगी जब तक कोई शॉर्टेस्ट आएगा तब तक मैं नहीं चलाऊंगी इसको, तब तो मैं सीपीयू को यूटिलाइज ही नहीं कर रही हूँ। दिस इज अगेन द वेस्टेज ऑफ सीपीयू। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी प्रोसेस मेरे को रेडी क्यू में मिलता है मैं उसे एग्जीक्यूट करती हूँ, उसका टाइम कुछ भी हो, उसका बर्स्ट टाइम कुछ भी हो, मैं उसे एग्जीक्यूट करूंगी। तो जीरो टाइम पे मेरे पास P0 ही था और उसका बर्स्ट टाइम कितना है 10। दिस इज अ नॉन प्रिमिटिव केस, रिमेंबर, राइट। मैं बीच में से किसी भी प्रोसेस को प्रिम्प्ट नहीं कर रही हूँ। तो 10 सेकेंड के लिए मैंने P0 को एग्जीक्यूट कर दिया। अब जब तक P0 एग्जीक्यूट हुआ टिल 10 seconds, there are three processes comes into the ready queue. Now these three processes are ready to for execution. Now I can decide which process will be scheduled. क्योंकि रेडी से रनिंग में लेके जाना है ना, रेडिंग से रनिंग में लेके जाना है तो मेरे पास डिसीजन मोड क्या है जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा, उसे मैं रेडी से रनिंग में लेकर जाऊंगी, राइट। तो रेडी से रनिंग में इन तीनों में से जिसका भी बर्स्ट टाइम कम होगा मैं उसे शेड्यूल करूंगी पहले। दिस इज द डिसीजन मोड इन शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट, तो विच इज हैविंग अ लीस्ट मिनिमम शॉर्टेस्ट टाइम P2, तो P2 विल बी एग्जीक्यूटेड, चाहे वो 3 सेकेंड्स पे एंटर किया नो प्रॉब्लम, बट टिल 10 सेकेंड्स these three processes into the ready queue। आपकी रेडी क्यू में P1 भी है, P2 भी है, P3 भी है, राइट। तीनों में से जिसका शॉर्टेस्ट टाइम होगा बर्स्ट टाइम उसे मैं पहले एग्जीक्यूट कर रही हूँ। तो मैंने P2 को एग्जीक्यूट किया टिल 2 दैट इज 12। देन इन बिटवीन P1 एंड P3 P3 how much seconds 4 16, then P1 how much 6, अगेन इट इज 22। कोई भी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो बाद में एग्जीक्यूट हो तो टोटल टाइम इज total burst time, that is 22। You can verify your chart as well, right? So this is how you will make a chart by using shortest of first। What is the idea behind shortest of first is clear? The same process you will carry forward with turnaround time, so you are having a exit time for each process। P1 का exit P0 का exit time 10, P1 का P1 का 22। ये नहीं जाना कि ये सीक्वेंस सेम है, पेपर में बहुत करते हो तुम लोग, दिमाग को खोलकर चलो। देन P2 12, P3 दिख रहा है आप लोगों को बच्चे? आप इधर शिफ्ट हो जाओ ना पीछे की साइड, इधर आ जाओ आगे की साइड। P3 is 16, so this is the exit time for each process। सीक्वेंस नहीं ले लेनी है, right? So now you can find the turnaround time and waiting time by using this time। Idea is clear? Okay, you will implement, you will do now। This is your average turnaround time and average waiting time for this। We are having, चलो मैं ही दे देती हूँ आपको यहाँ पर, पेन पेपर उठा लो साथ साथ। प्रोसेस, अराइवल टाइम, एग्जिट टाइम, ए बी सी और डी। प्रोसेस P1 का मतलब ये नहीं है कि वो पहले आया इसलिए P1 लिखा है, दिस इज ओनली द नेमिंग कन्वेंशंस वी आर हैविंग। जैसे कि ABCD भी हो सकता है, ठीक है, MNOP भी हो सकता है, वट एवर द नेम आई हैड गिवन टू द प्रोसेस। आपका नाम भी मैं प्रोसेस को दे दूं, इट डजंट मीन इट इज यू, राइट। चलिए करिए।
Yes, guys, do it. Let me know the average turnaround time and average waiting time. What will be the time, execution time of the last process, which will exit last? What will be the time of the last exit process? 60. Yes, correct, correct, correct. Rinku Abhiraj, do it. Waiting time is zero. Average waiting time is zero. मुझे ये बताओ ए का वेटिंग टाइम क्या है? प्रोसेस ए का वेटिंग टाइम जीरो. प्रोसेस ए का वेटिंग टाइम जीरो. क्यों बेटा? अराइवल टाइम क्या है प्रोसेस ए का? 1. स्टार्ट कहाँ से किया? चार्ट जीरो से. फिर वेटिंग टाइम जीरो कैसे होगा? हाँ, एक मिनट में चार्ट बना दूं यहाँ साथ साथ. आप लोग देखो क्या कर रहे हैं. We will start from जीरो. जीरो पे कोई प्रोसेस नहीं है मेरे पास क्यू में, तो एक सेकेंड के लिए तो आपका सिस्टम आइडल ही है. ठीक है. अब 1 पे मेरे पास दो प्रोसेस आ गए रेडी क्यू में, ए और बी. कौन से प्रोसेस का टाइम कम है? ए का. तो पहले ए एग्जीक्यूट होगा, राइट. 1 पे मेरे पास दो चॉइसेस है ना, ए और बी. I will execute A first. Why? Because A is having a shortest burst time, that is 3, between 3 and 4. So A will be executed first till 3 seconds. So it will become 4, right? So waiting time क्या होता है? Turnaround time minus burst time. Okay, we will go for that. Firstly, draw the chart. Then till 4, these two processes also came. C और D at 2 seconds. तब मेरे पास A हो चुका है कंप्लीट. अब इन तीन प्रोसेसेस में से किसका शॉर्टेस्ट है? C का. C will go first till 3 seconds. Then B will go till 4 seconds. Then D will go for 6 seconds, that is 17. How you said it is 16? The last process will exit at 16 seconds. Because अब देखो, आपने ये नहीं देखा कि पहला प्रोसेस कब आया 1 सेकेंड पे. अगर पहला प्रोसेस 2 सेकेंड पे आता तो और ज्यादा टाइम हो जाता, and it will become 18. The time for exit of last process will become 18 if the first process arrived at 2 seconds. So you have to check this as well. This is very एक क्या है, लॉजिकल है, बस आपको देखकर सोचना है कि क्या हो रहा है सिस्टम में. वो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा उसको. अब वेटिंग एग्जिट टाइम फाइंड, अरे सॉरी बर्स्ट टाइम था. एग्जिट टाइम देखते हैं. ए का एग्जिट टाइम क्या है? 4. बी का एग्जिट टाइम क्या है? 11. सी का 7. डी का 17. टर्न अराउंड टाइम
A के लिए 4 minus 1 3, 11 minus 1 7 minus 2 5, 17 minus 2 15, right? Waiting time, turnaround time minus burst time. So 3 minus 3 0, 10 minus 4 5 minus 3 2, 15 minus 6 9. Correct values? What is the average value? 8.25 is the average value for turnaround time. For waiting time, 4.25. Okay. Done? Shortest job first, clear है? Yes, also whosoever is giving the answer in the comment section is correct. Okay. So we are closing this session here with this. We will discuss the next algorithm maybe in next session.